ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಯಾರು ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2-3 ದಿನದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅನ್ನನ್ನೇ ಒದ್ದಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ. लेकिन हमें भारतीय होने के नाते हम हमेशा ये है, लेकिन हमें यकीन है ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಳಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ 10,000 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ. I want peace for everybody. I mean, I'm an American myself. I don't agree with funding anything that's going on anywhere in the world that causes the loss of a person's life, period. And the situation right now in Palestine is not just about now, it's about the past since the 40s, and it needs to stop. And I'm happy to see that finally in Bangalore and in India we're able to have a peaceful protest, because it's a long time coming. The rest of the world is speaking up, and I'm glad to see that in Bangalore and in India as well. Your name, ma'am? Chelsea. Thank you. Thank you so much. Palestine, that innocent children and women are being attacked, they are being killed. There is a genocide happening, and Israel is unable, is not stopping its aggression, and the world has failed to stop It's the saddest thing actually that we as we with the technology, we with every power, we still cannot do anything about it. Like we are still witnessing every horror. In a minute, like a child is dying by the Israel aggression and all. But the thing is that this saddest fact is even we know what is right and what is wrong. If we speak about it, we will be censored. If we speak about it, we will be not be able to do anything. So the thing is that the Israelis are doing with the Palestinians, it's not since October 7th. It started 75 years back. The occupation started since 75 years back. So the mere resistance on October 7th, it's not it was a resistance. The media is portraying it as an attack or something like that. It is responsibility, or it is the right of them to resist back, right? So who are we to say to them that you are a terrorist, you are this and that? It's not right. Supporting Palestine and condemning the action by Israelis. How do you see the situation, and what is it that you want? Well, I would like to thank everyone who came here today. First, as a human being, on a human level, this is a very, very difficult time that we're watching a genocide happening. And as a Palestinian, I would also like to thank everyone who came here today. We, as Palestinians, we've been suppressed for over 75 years, and we've been silenced for over 75 years. So seeing people standing here calling for a free Palestine, they are speaking for Palestinians. So would love to thank them. Would love to thank everyone who came here. They are being the sound of Palestinians, which been suppressed and silenced for over 75 years. What do you think the future holds for Palestinians? Nobody knows. We hope for ceasefire first of all, and negotiations for better situation for everyone. Your name, sir? Amir. Amir.
So right now the like single point agenda of Israel seems to be decimate the whole of Gaza Strip in the pretext that they're basically it's a war against Hamas. Well, it's actually a war against the Palestinian civilians. So that's what we are seeing unfold right in front of our eyes. We are living through a genocide. I don't think that's very common. For at least in my lifetime, I don't think I have experienced something as grave, as dangerous, as shameful as anything like this. One side that's happening, and the other side the state government is trying to impose silence on the people. The people are trying to protest against the coming out in support of, in a show of international solidarity. There's a crackdown on them. So this is for the first time the state government has agreed to such a peaceful protest here inside the designated place called Freedom Park. Whatever has happened so far, be it any protest outside this Freedom Park, it has been slapped with FIRs. Protesters have been slapped with FIRs. So the government that is supposed to uphold people's democracy, the dissenting rights of the citizens, is doing practically carrying out the same thing. So we come here as in solidarity with Palestine as well. This is something where we want to say that nothing can silence us. Your name, ma'am? Aratrika. I'm from All India Students Association. शुरू से हमारा देश पाकिस्तान के तरफ था, लेकिन आज ये जो नया सरकार जो है वो मोदी वाला सरकार, इन लोगों ने इजराइल के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान के बारे में बहुत खेल रहे हैं। तो हमारा मांग है, हमारा सत्याग्रह है, हमारा सदाग्रह है कि हमारा देश फिर से इंसाफ की तरफ, न्याय की तरफ रहे और पाकिस्तान को सपोर्ट करे और इजराइल को क्रिटिसाइज करे। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। ये न्याय धर्म का रक्षण करना है हमारा देश को, बस यही है। आपका नाम सर? मेरा नाम रघुनंदन है, मैं कन्नड़ का एक कवि हूँ और रंग निर्देशक हूँ। जब से इजराइल गाज़ा के ऊपर आकर जो वार किया है, वहाँ की जो सिविलियंस के ऊपर जो गारतगिरी हुई है और जो वहाँ पर जुल्म हुआ है, ये सारे वर्ल्ड में सबसे घिनौनी हरकत है। एक तरह से कहते हैं कि जेनोसाइड, जबकि इसने अब तक बहुत सारे आकर वर्ल्ड के कानून तोड़ चुका है और साथ ही साथ एक निहत्थे और कमज़ोर इंसानों के पास, जिनके पास हथियार नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास रिहाइश में सही सहूलत नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। इसलिए सारे यहाँ पर मुत्तहिद होकर हम यहाँ पर एक एहतजाज कर रहे हैं। इसमें हमारा भरपूर आकर ताउन रहेगा। आपका नाम? सलीम अहमद। कर्नाटका जो है ये क्लैंप डाउन करने में, मैदान में या फ्रीडम पार्क में तो दूर, ये तो बंद कमरे में भी जो है बैन इम्पोज कर रही है। नस्ल कुशी है, ये तो सारी दुनिया कह रही है, हमारा मुल्क भी कह रहा है। अब आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले जो उसका अंदाज़ था बात करने का, वो बदल दिया, पूरी तरह से बदला हुआ अंदाज़ है और फ़लस्तीन की हिमायत में है। कर्नाटक में हम ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हमेशा से फ़लस्तीन के फेवर में रही है और अब भी है। जैसे बात हमारे बीच में आई है कि सोनिया गांधी जी ने जो लेखन लिखा है उससे भी वाज़ेह है बात, लेकिन हमें ये इस बात पर अफसोस है कि कर्नाटक सरकार ने पुरअमन एहतजाज करने के ताल्लुक से भी परमिशन नहीं दिया और उसके लिए बहुत सारे तंजीमें काम करती रही और ये सिर्फ मुसलमान तंजीमें नहीं बल्कि जितने भी सिविल सोसाइटी में काम करती हैं, अमन और शांति के लिए काम करते हैं, सारे तंजीमों ने मिलजुल कर यहाँ परमिशन देने के सिलसिले में बहुत ज़ोर दिया। लेकिन ये कह कर के रद्द कर दिया गया था कल तक भी कि फ़लस्तीन के हिमायत में या इसराइल के ख़िलाफ़ में हम एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। बात एक अच्छी ये हुई कि कल वज़ीर आला ने उस बात का इकरार किया कि कुछ गलती हमसे हुई है और हम दस्तूर के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए जो भी प्रोटेस्ट करेंगे हम उनको परमिशन देंगे। आज हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ और कामयाब एहतजाज है ये। इस एहतजाज में आपने देखा है कि बहुत सारे तंजीमों ने और बहुत ही मशहूर शख्सियात आज के प्रोग्राम में शरीक रहे हैं, जिन्होंने मज़ामीन को लिखा है, आवाज़ उठाई है और एक बड़ा चेहरा है कर्नाटक के अंदर। उन्होंने आज के प्रोटेस्ट के अंदर शरीक होकर के उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में उन्होंने बात कही है। हम ये कहना चाहते हैं कर्नाटक सरकार से, आइंदा कहीं भी इस तरह से जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो उनको बराबर उनको इजाज़त देना चाहिए, ये उनका बुनियादी हक़ है।
तो अगर सरकार इस तरह करती है तो जाहिर बात है कि इजाज़त देना ये अपने दस्तूर की बात होगी, अमन और शांति की बात होगी और जमहूरियत की बात होगी। तो आइंदा सरकार इस सिलसिले में गौर करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने जो अपनी बात को कबूल कर लिया, गलती मुझसे हुई है, और आइंदा पूरे कर्नाटक में कहीं भी पुरअमन एहतजाज होता है तो इजाज़त देने की बात उन्होंने कही है। इसराइली एग्रेशन जो चला है, जो बर्बरियत चली है, जारहियत है, जुल्म है, जेनोसाइड बताया जा रहा है। देखिए, ये लास्ट 1.5 महीने से जो बर्बरियत, जो जेनोसाइड चलने कर है, करीब 20,000 लोगों को कत्ले आम किया गया, उसमें करीब 9,000 बच्चों को मारा गया। बहुत बड़ा एक जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ मुल्क भर में और थ्रू आउट वर्ल्ड में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आज फ्रीडम पार्क में कर्नाटक के तमाम तंजीमें, तमाम जो प्रो पीपल तंजीमें, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, किसान का ऑर्गेनाइजेशन, सब मिल के आज एक जो प्रोटेस्ट एहतजाज जो किया है और पैलेस्टीन का फेवर में, पैलेस्टीन का फ्रीडम फाइट का फेवर में आज हमारा सॉलिडारिटी हम लोग सब मिलकर इधर दिखाए हैं। इस टाइम में 1.5 महीने से आप देख रहे हैं, जब इसराइल का जो अग्रेशन शुरू हुआ उस टाइम से ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट हम लोग पूरा कर्नाटक में एहतजाज के लिए जो परमिशन को डाला, वो परमिशन नहीं किया। हालांकि कई जगह परमिशन हुआ, उधर अरेस्ट किया गया, मैसूर में प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया और नोटिस दिया गया, बहुत सारे FIRs हमारे ऊपर दाखिल किया गया। ये जो हुकूमत, जो कांग्रेस ऐसा प्रो पीपल एक्टिविटी से, प्रोटेस्ट से, जो बीजेपी हुकूमत था, इन लोग कितना प्रोटेस्ट किया, कितना पदयात्रा किया, मेकेदाटो पदयात्रा किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट इन लोग किया है। तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये आवाम की हक है। आज पैलेस्टीन का फेवर में प्रोटेस्ट कांग्रेस अगर रोक रहा है तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड मालूम नहीं है। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, देखिए आपका कांग्रेस का जिम्मेदार, कांग्रेस का लीडरशिप जाके दिल्ली में पैलेस्टीन का अंबासडर को जाके मिलकर सॉलिडेरिटी डिक्लेयर करें। सोनिया गांधी जी दी हिंदू में आर्टिकल लिखते हैं पैलेस्टीन का फेवर में। आपका केरला का कांग्रेस कमेटी बहुत बड़ा एक एहतजाज पैलेस्टीन का फेवर में 2 दिन पहले किया है। और दूसरा, इनका CWC सेंट्रल वर्किंग कमेटी में पैलेस्टीन का फेवर में रेजोल्यूशन पास किया है। ये तमाम होने के बाद भी कर्नाटका का कांग्रेस हुकूमत क्यों पैलेस्टीन का खिलाफ है? क्या एक क्लियर बता दो आप इसराइल का फेवर में, नहीं तो क्यों इसका रुकावट ये कर रहे हैं? सही करना है। अगर ये सही नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में अवाम आपको भी जो रास्ता बीजेपी को दिखाया वो दिखाना पड़ता। Pro Palestine stand, and today again you are here. How is it that you see? Little bit I feel this is a democracy country now, because in our constitution it is very clearly written that a strike is a fundamental right. This is not a strike. It's a human to human, a touch for a human. Wherever human right violation, one should raise their voice. I want to particularly say something about the present government, Siddaramaiah government. They say that we are secular. I really not agree with that, because when we gave a letter to support the Palestinians, they rejected our application. What is happening here? And the same chief minister on 15th of the last month, when in the book release of the Marla Siddhappa, he has assured the audience that the next day he is going to speak with the Advocate General. From that day, every day he used to talk to the Advocate General. Advocate General very clearly said that there is no call from Chief Minister. Then I met the Chief Minister also and said, sir, you have given a assurance to the audience. It has been not fruitful. So at least now, yesterday he has given the permission. I don't know whether it is in a word or in written. So I wanted to file a petition before the High Court. This is the condition. To speak, you have to file a petition before the High Court. We'll see what will happen on the Monday. If they clearly come out for giving a permission to the protest irrespectively, it is okay. Otherwise, I'll go to the High Court
to raise my voice. मैं सोचती हूँ कि हमारे इस्लाम क्या सिखाते हैं, अगर कहीं पे जुल्म हो जाए तो हमको उसके ऊपर बात करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कुछ मत करो, दुआ करो। हाँ, दुआ करेंगे, लेकिन हमारे इस्लाम ने ही सिखाया है कि पहले आप अगर कुछ भी जुल्म देखें तो उसको अपना हाथ यूज करो और बंद करो। हाथ नहीं उठा सकते तो मुंह से बात करके बंद करो, वो भी नहीं कर सकते फिर दुआ करो। अभी हम कुछ कर सकते हैं। आज का जनरेशन, अभी मैं तो जब 8 क्लास में हूँ तब से मैं फलस्तीन के बारे में सीख रही हूँ, मालूम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिसको मालूम नहीं था। आज का जनरेशन जिसको हम लोग मजाक करते हैं कि टिकटॉक जनरेशन है, इंस्टाग्राम जनरेशन है, ये बच्चे हमेशा इंस्टाग्राम में रहते हैं। यही बच्चे हैं जो अभी फलस्तीन के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बात बता रहे हैं कि फलस्तीन में अभी क्या हो रहा है। तो आप घर में बैठे हुए कुछ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक वीडियोस अभी तो सब लोग हैं, उसमें कुकरी शोज देखते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, गार्डन के बारे में लाइक करते हैं, बेबीज के बारे में लाइक करते हैं। एक पोस्ट फलस्तीन के बारे में भी लाइक करो, क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, डरना नहीं है। वो एक पोस्ट लाइक करने में जो सोशल मीडिया में ट्रेंड ऊपर जाएगा तभी पूरे दुनिया में ये बात आएगी। अभी उतना जहाँ पे इतना हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर 500-600 बच्चे मर रहे हैं। हर घर में बच्चा है। देखिए अपने अपने बच्चों को, आपको कैसा लगेगा? कल बेंगलुरु में एक डर हुआ कि बॉम्ब है, तो इतना डर गए पेरेंट्स, सब लोग उधर इधर भाग रहे हैं। मेरे भी फैमिली लोग डर गए थे। तो आप सोचें कि हर दिन रात को बैठ के पेरेंट्स डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग कब, हमारा बच्चा का कब एंड होगा। नाम लिख रहे हैं अपने बच्चों के बॉडीज में। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और अभी जो वहाँ पे डॉक्टर्स के जो उन लोगों के अंदर डर है, वो मैं सोच के मुझे तो मालूम नहीं होता कि मैं अगर उनके सिचुएशन में थी तो क्या कर सकती थी। जो बच्चों को एनेस्थीसिया दिए बगैर स्टिचिंग करते हैं, मैंने मेरे लाइफ में एक बार ऐसा किया है कि एनेस्थीसिया बगैर एक स्टिचिंग किया है, क्योंकि वो पेशेंट कंप्लीटली ड्रंक और अनकॉन्शियस थी और फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे कि अगर वो पेशेंट को कॉन्शियस हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे तो छोटे बच्चे हैं जिनको एम्पुटेशन कर रहे हैं। एम्पुटेशन का मतलब है हाथ काटना, पाँव काटना। आज मैंने पढ़ा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक ही दिन में मैंने इतना हाथ पाँव काटा है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, घर में बैठे हैं, मोबाइल है, मोबाइल का यूज करो, अपने स्टोरीज आप लिखो या अगर कोई और लिखे हैं तो उसको शेयर करो, लाइक करो। ये अभी 75 इयर्स हुआ है, अभी मत आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अभी हमारे साथ अभी पुलिस प्रोटेक्शन में है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट को नहीं आ सकते हैं, बहुत से लोग नहीं आ सकते, तो घर में बैठ के कुछ तो करिए ना, वही मेरी रिक्वेस्ट है। डॉक्टर निहाद।